स्क्रीनिंग इफेक्ट भी समझ में आया. नाउ व्हाट नेक्स्ट? I actually start discussing with you periodic properties. और इन periodic property में आज हम सबसे पहली periodic property जो करने वाले हैं, that first periodic property is going to be your atomic radius. So let us understand atomic radius and how does atomic radii vary in periodic table. So now basic discussion हमारा खत्म हो गया और हम प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट किए हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट से ही. And my first property was screening effect. Second property that I did in screening effect with you is effective nuclear charge. Now main discussion is of atomic radius. Atomic radius is something very important. By knowing atomic radius, we are going to talk about atomic size. तो एटॉमिक रेडियस मेजर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एटॉमिक साइज समझनी है एटॉमिक रेडियाई मेजर करके. ऑब्वियसली जिसकी रेडियस ज्यादा है उसकी एटॉमिक साइज भी क्या होगी? ज्यादा ही होगी. सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट एटॉमिक रेडियस? बिकॉज अल्टीमेटली इवेंचुअली आई नीड टू डिस्कस विद यू अबाउट एटॉमिक साइज. नाउ लेट अस फर्स्ट डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड it's not easy when I say I want to measure atomic radius. So I will make you understand what are the difficulties that we will face while measuring atomic radius. पहले इसको define कर देते हैं. So what is the definition of atomic radius? The distance between the center of the nucleus and outermost shell where electrons are present. This can be the simple definition of atomic radius. Just changing the marker. मैम दिख नहीं रहा है जो आप लिखे हो. नहीं दिख रहा है ब्लू से? मतलब जो बोर्ड पे लिखा है वो नहीं दिख रहा. मतलब बहुत ही लाइट हैंड राइटिंग है, दिख नहीं रहा है कुछ भी. Okay. Give me 1 minute बेटा. I will change the marker. मैं मार्कर बदल के लिखती हूँ. फिर से लिखती हूँ. नहीं दिख रहा है? I'm writing again. So it is the distance between the center of the nucleus and the outermost shell where electrons are present. It's called atomic radius. Okay, this is what is the definition of atomic radius. Now I have to make you understand
What are the difficulties, in measuring the atomic radius? It's not easy. So I'm discussing with you difficulty in measuring atomic radius. So everybody knows कि size of the atom is very, very small. So atomic radii also is going to be more smaller than that. And that's the reason we are going to face so many difficulties. So what is the first difficulty in measuring atomic radius? आपका atomic structure पढ़ के हो गया है, तो tell me, does atom has well defined boundary? Can I pinpoint the position of electron in an atom? No, ma'am. No, ma'am. आपको हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिखा के हो गया. Yes, ma'am. हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पिन पॉइंट नहीं कर सकते. Okay, so I cannot understand this distance perfectly as atom does not have a defined boundary, and the probability of finding electron is never going to be zero, even at the large distance from the nucleus. The first reason why I cannot atomic radius is this: the atom does not have well-defined boundary. Second difficulty in measuring atomic radius is it is not possible to isolate a single atom. Single atom को isolate करना possible नहीं है. तो हमेशा atom will be surrounded by some other atoms. It will be under the influence of some neighboring atoms. तो अभी इससे क्या हो जाता है? When two atoms are there next to each other, then nucleus of one attracts the electrons of another. So there are some attractive forces, there are some repulsive forces, and this disturbs the electron cloud. इससे electron cloud disturb हो जाता है. So meaning of this is it is not possible to get an isolated atom. The electron density around an atom is affected by the presence of neighboring atoms. And that's the reason size of the atom is going to change. What is the whole meaning of this? Size of the atom will change based on what atoms are there in its neighborhood. तो उसके अराउंड सेम एटम्स है, डिफरेंट एटम्स है, कौन सा एटम है, उसका कितना न्यूक्लियर चार्ज है, ऑल दिस विल मैटर. और ये इसमें से कुछ भी चेंज हो गया तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. So this is the another major issue in measuring the atomic radius.
तो ये दोनों फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ये छोड़ के तीसरा प्रॉब्लम क्या है? तीसरा प्रॉब्लम ये है कि एटम की साइज बहुत छोटी होती है, इन द पावर ऑफ 10 raised to -10 meters. This is the size of atom, and the radius size is going to be still smaller. तो इतना छोटा सा डिस्टेंस मेजर करना और उसके लिए प्रिसाइजली इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होना वेरी वेरी डिफिकल्ट। So how do we do this? See, we cannot measure the radius. Radius बहुत ही छोटा हो जाता है मेजर करने के लिए, और जो भी हमारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है उससे रेडियस का प्रिसाइजली मेजरमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। So what do we do? To estimate the size of the atom, we measure bond length. So I'll explain you what is a bond length. I'll also explain you कैसे measure होता है। But radius के जगह पे, for understanding the size of the atom, bond lengths are measured so that these difficulties can be overcome. ये जो difficulties है, they will get overcome if we try to measure the bond length. Now this also is done by using highly sophisticated instruments like X-ray diffraction technique or infrared spectroscopy और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनमें से किसी को यूज करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं रेडियस की। So I'll teach you how to do this. These are very sophisticated instruments. ये अपने नॉर्मल ऑर्डिनरी लैब में अवेलेबल नहीं होते। You need a research lab like PIFR या IIT या BARC, ऐसे रिसर्च लैब में ये इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है और जिससे हम बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं।
Now see, when I'm using the word bond length, तो bond length measure करने के लिए पहले दो atom bonded होने चाहिए. There has to be a bond there. And the bonds are not of same type. It's the bond between two atoms. Okay. Of any two elements of the periodic table is of same type. No, there can be a covalent bond, there can be a metallic bond. Inert gases में तो bond ही नहीं होता. तो bond के अलग-अलग types है. And that's the reason when we are now talking about measuring a bond length, due to the different types of bonding, as there are various types of bonding possible. और जैसे ही बॉन्डिंग बदल गया बॉन्ड लेंथ बदल जाती है. तो अभी बॉन्ड लेंथ मेजर कर रहे हैं ठीक है, बट बॉन्ड लेंथ मेजरमेंट के भी अपने प्रॉब्लम्स है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? द बॉन्ड लेंथ चेंजेस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग. So the next important point that you have to understand कि bond length fix नहीं है, वो भी change होती है. And based on this, based on different types of bonding, we are defining three types of radii. Covalent radii, crystal radii, and van der Waals radii. And I will define you all the three. And I'll explain you कि कैसे bonding बदलने से bond length बदल जाती है. All this is the next set of discussion that we are going to do. So understand कि bond length will change based on different types of bonding. And then we are learning three types of radius based on that. So I'll explain you each one of this radius in detail. Definition क्या है, measure कैसे करेंगे, everything about it. So let us start discussing and understanding first type of radius, covalent radius. So can you hear me बेटा? Yes, ma'am. आवाज आ रहा है ना? ठीक है. तो कोवालेंट रेडियस कैसे मेजर करते हैं ये समझ लेते हैं. So let me give you first the definition of covalent radius. Covalent radius of an element, okay, will be obviously there when two atoms are covalently bonded with each other. उन दोनों के बीच में अगर कोवालेंट बॉन्ड है तो उससे जो रेडियस मेजर होगी उसको हम कोवालेंट रेडियस कहते हैं. And it is defined as half of the distance between two nuclei of two like atoms
bonded together by a single covalent bond. So I'm writing this definition. I will draw a diagram and explain you this also. So let us draw a diagram and understand this, what I'm talking about. So I'm drawing two atoms which are covalently bonded and both the atoms are same. Like atoms लिखा है मतलब दोनों एक ही एलिमेंट के एटम्स है, दोनों H है, दोनों Cl है. तो ये दो लाइक एटम्स है, अगर ये एक है तो ये भी एक ही है. This is the nucleus of one, this is the nucleus of another. ये कुछ पोर्शन में ओवरलैप मैंने ड्रॉ किया है. So when I will do bonding, you will understand this in a better way. But जब भी दो एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है तो उसके ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप सिचुएशन में होता है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका ओवरलैप होता है जैसे मैंने ड्रॉ किया है. So this is how two covalently bonded atoms are going to look. Now what is a bond length जो हम मेजर कर रहे हैं? Bond length is this distance, nucleus of one or nucleus of another के बीच का distance. I call this as distance AA. ये distance AA जो है ये bond length है. So if this is a bond length, what is the definition of a covalent radius? ये radius A क्या होगी? Radius of A half of the distance between the nuclei of two like atoms bonded together by single covalent bond. तो ये जो covalent radius है जिसको मैं RC से represent करूंगी वो ये distance AA divided by 2 है. तो ये half of the distance जो भी होगा उसको हम कहेंगे covalent radius. अभी इसमें दोनों एटम सेम है तो my distance AA is radius of one and radius of another. दोनों की radius मिला के मेरा distance AA है. So is this clear to you? Yes, ma'am. और ये कहाँ से मेजर करूंगी मैं? How do I measure this distance AA? Suppose this is chlorine. ये chlorine molecule है. So I will have to take a chlorine sample. I will have to use any one of this technique, and in which I will be in position by using this technique. I will be in position to measure this distance AA. And then whatever is that distance AA coming, we will divide it by 2 and we will get the radius of atom. And this radius is going to be called as covalent radius. So I have some data I will give you. Hydrogen molecule में जो bond length है वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ.
कोवालेंट रेडियस क्या होगी हाइड्रोजन की? मैम हाँ बोलो बेटा। मैं एक बार वापस बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई कैसा आया? डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ये इंस्ट्रूमेंट से आता है. These instruments are capable of measuring this distance, and this distance between the two nuclei is our bond length. एक बार ये इंस्ट्रूमेंट से बॉन्ड लेंथ आ गया तो तुम्हारा कोवालेंट रेडियस क्या होगा? बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, हाफ द डिस्टेंस करना है. तो हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ आ गया 0.74, तो हाइड्रोजन की रेडियस हो गई 0.37. वैसे ही क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ है 1.98, तो क्लोरीन की रेडियस हो गई 0.99. So is it clear till here everybody? Yes, ma'am. So can I clear left hand side of the board? Yes, ma'am. अभी Yes, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है बोर्ड पे, एवरीबॉडी नोस कि ये दोनों एटम सेम है. Yes, ma'am. है ना? एक क्लोरीन है तो दूसरा क्लोरीन ही है. सो आई एम जस्ट थ्योरेटिकली, मतलब वी विल प्रिफर ऐसे ही मॉलिक्यूल लेके कोवालेंट बॉन्ड लेंथ को मेजर करें, ये प्रिफर्ड होगा. बट अगर दो अलग एटम वाला मॉलिक्यूल लिया तो फिर क्या हो जाता है? कोवालेंट बॉन्ड लेंथ के मेजरमेंट के लिए, और उससे कोवालेंट रेडियस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग द नेक्स्ट.
देखो ये जो मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया है ना बोर्ड पे, इसको कहते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। आई एम राइटिंग द नेम। इसका सिंपल मतलब ये है कि दोनों एटम सेम है। अभी मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ करूंगी जिसमें एक एटम ए होगा तो दूसरा एटम तुम्हारा बी होगा। वन इज ए, अनदर इज बी, टू डिफरेंट एटम्स, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड क्या फर्क पड़ता है। So suppose this is A and this is B. Two different atoms, दोनों सेम नहीं है तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है। ओके, आगे चल के इस टॉपिक में मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पढ़ाऊंगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क आ जाता है जिसके वजह से ये ओवरलैप रीजन बढ़ जाता है और जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ये अंडरस्टैंड करो कि ये जो डायग्राम है ये हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का है। अभी इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ऑब्वियसली ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगी, जिसको मैं कहती हूँ डिस्टेंस ए बी। कहाँ से आएगा ये डिस्टेंस ए बी? आई एम गोइंग टू गेट दैट फ्रॉम एनी ऑफ द टेक्निक्स, XRD या इंफ्रारेड या NMR। इनको यूज करके हम डिस्टेंस ए बी मेजर कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज व्हाट दिस डिस्टेंस ए बी विल बी। यहाँ पे ये डिस्टेंस ए क्या है? रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ ए। तो वैसे ही यहाँ पे ये डिस्टेंस ए बी क्या है? ये डिस्टेंस ए बी दोनों की रेडियस को मिला के हमको आने वाला है। बट इसमें अंडरस्टैंड करो कि आई कैन नॉट से रेडियस ऑफ ए विल बी डिवाइडेड बाय 2 एज दोनों की साइज डिफरेंट है, दोनों सेम एटम नहीं है। और इसमें क्योंकि दोनों सेम एटम नहीं है, ये जो ओवरलैप रीजन है इसका एक फैक्टर हमको कंसीडर करके माइनस करना पड़ता है। I will explain you about this factor also. So the net formula becomes RA plus RB minus 0.09 delta I. So this is the formula. I am explaining you each and every term that I am using in this formula. हम वो 0.09 डेल्टा आर है। डेल्टा काय बेटा, इट्स अ ग्रीक अल्फाबेट pronounced as sky, CHI। ये x जैसा होता है, R नहीं है बेटा, it is like x। होता क्या है मैम? It is called as sky। तो x का ग्रीक अल्फाबेट। तो अभी इसमें देखो क्या क्या आया है, DAB आया है, तो ये हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। मैम वो कांस्टेंट है मैम 0.09 डेल्टा। ये सब समझा रही बेटा, गिव मी 2 मिनट्स, पे अटेंशन, सब समझा रही हूँ एक एक करके। यहाँ से स्टार्ट किया वहां तक सब समझाऊंगी, ध्यान दो। तो डिस्टेंस AB इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फिर ये RA क्या है? व्हाट इज एग्जैक्टली रेडियस ऑफ A?
It is a covalent radius of A. And that will be equal to distance AA upon 2, that way. RB will be covalent radius of B. And it is going to be distance BB upon 2. अभी वो फैक्टर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मैंने लिखा है डेल. डेल मतलब डिफरेंस, and chi is used for electronegativity. So I'm going to discuss about electronegativity as we go ahead in periodic properties only. So it is defined as ability to attract shared pair of electrons, or every atom has got its own electronegativity. तो ये डेल काई क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम्स ए एंड बी. क्या तक समझ में आया? अभी वो 0.09 क्या है? That is a constant and that is in the unit Armstrong. इसका मतलब है ये सब एंगस्ट्रॉम में है तो वो 0.09 है. अगर मेजरमेंट्स एंगस्ट्रॉम की जगह पे पिकोमीटर में है तो वो फैक्टर अकॉर्डिंगली चेंज होगा. अगर रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ बी पिकोमीटर में दिया है तो 0.09 के जगह पे 9 आएगा, as your 1 angstrom is 10 raised to 2 picometer. So the formula is this way if it is in angstrom. The formula will change to this. So I'm just showing you the convergence. All this you've learned actually in atomic structure. So it will be minus 9 del chi. And this is in picometer. As your 1 angstrom is equal to 10 raised to 2 picometer. ऐसा क्यों आ रहा है? तो ये जो फॉर्मूला है इसने ये ओवरलैप रीजन को कंपनसेट कर दिया है. कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा ओवरलैप रीजन आएगी ही आएगी. तो जब भी दोनों एटम सेम होते हैं तो वो हम निग्लेक्ट कर देते हैं, बट अगर दोनों एटम डिफरेंट है तो हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते. इन सिंपल वर्ड्स दिस इज व्हाट इट इज. तो अभी किसी को डाउट है तो पूछो. Anyone has any doubt in this? So I go ahead. The next is metallic radius.
So now I'm explaining you the next radius, that is your metallic radius. So see what is the meaning of metallic radius, जिसको crystal radius भी कहते हैं. And basically why we need one more radius, ये सब हम अभी समझेंगे. ये मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस किसके लिए है? मेटल्स के लिए है जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करते. So we know that all the elements are not going to form covalent bond. तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करते तो कोवैलेंट रेडियस मेजर नहीं होगा. नहीं तो फिर मैम. उनका क्या, कौन सा रेडियस मेजर हो Ionic. सकता है? आयोनिक रेडियस radius. करेंगे. हाँ मैम. So suppose I'm having a block of aluminium. तो जिसमें दो एल्यूमिनियम एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड तो नहीं है ना, वो तो मेटल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है. उसमें भी एटम्स आर पैक्ड कॉम्पैक्टली. Okay, every metal is going to have its own three-dimensional structure. And then what do we do? Metallic radius कैसे measure होती है? Same, we will be using say X-ray diffraction machine by taking a sample of metal, and we will try to measure the distance between the two nuclei of metal atoms in their solid state close packed metallic structure. और वो जो भी डिस्टेंस होगा वो उसकी हो गई मेटालिक बॉन्ड लेंथ, और उस बॉन्ड लेंथ का जो हाफ डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे मेटालिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस. सो डेफिनेशन होगा हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन अ मेटालिक लैटिस. Separating to liquid is half the internuclear distance between two adjacent metal atoms in metallic lattice. Now I'm using this word metallic lattice. अभी metallic lattice का मतलब क्या है? What is the meaning of lattice? Lattice is nothing but three-dimensional arrangement of atom. तो metal के crystal structure में जो 3D arrangement है उसके atoms की, उसमें दो metal atom के बीच का जो distance है वो मेजर करके उसको हमको हाफ करना है. अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको बता रही हूँ कि क्या फर्क है. तो आप लैटिस का मीनिंग एक और बोल सकते हैं? लैटिस का मतलब है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड स्टेट. तो ये एक मेटल का एटम है और ये उसका नेबरिंग दूसरे मेटल का एटम है. दोनों सेम है. एक मेरा छोटा बड़ा दिख रहा है बट दोनों सेम है. एक एल्यूमिनियम है तो दूसरा एल्यूमिनियम है. तो अभी इसमें और कोवैलेंट में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? ओवरलैप नहीं हो रहा. ओवरलैप नहीं हो रहा है. ओके, एटम्स विल टच, दे आर कॉम्पैक्ट बट देयर इज नो ओवरलैप.
यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये जो डिस्टेंस है दो मेटल के बीच में, आई कॉल इट एज DMM, ये मेजरमेंट होगा इंस्ट्रूमेंट से, और मेटालिक रेडियस क्या होगी, हाफ ऑफ दिस. So I'm denoting your metallic radius as RM, and it will be the distance EMM upon 2. Is that clear? Yes, ma'am. So again, I'm having some data radius का जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, so that you get some idea about it. तो पोटेशियम मेटल का जो distance between the two adjacent potassium atoms in solid potassium is 4.62. तो अभी मुझे बताओ, मैंने मेटल की, एल्यूमिनियम मेटल की ही कोवैलेंट रेडियस भी मेजर कर ली, जिसमें एल्यूमिनियम कोवैलेंट कंपाउंड बना था एल्यूमिनियम ऑक्साइड से. So I can measure aluminium's covalent radius where it is forming covalent bond, and I can measure aluminium's metallic radius also. क्या लगता है दोनों रेडियस का जो आंसर है वो सेम होगा? नो मैम. अलग आएगा? हाँ. कौन सा ज्यादा आएगा, कौन सा कम आएगा? मेटेलिक रेडियस ज्यादा आएगा. मेटेलिक रेडियस ज्यादा है. ज्यादा आएगा. कोवैलेंट रेडियस कम आएगा. So you are right. हाँ सर. So that's what the whole point. Bonding change हो गया तो रेडियस चेंज हो जाती है. कोवैलेंट बॉन्डिंग से सेम एटम की रेडियस अलग आएगी, और मेटालिक बॉन्डिंग से सेम एटम की रेडियस अलग आएगी. बाय डेफिनेशन कोवैलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन मेटालिक रेडियस. हाँ मैम, क्योंकि ओवरलैप Yes, हो रहा है ma'am. इसमें एज अ ओवरलैप होल. नहीं होता ना, हाँ, इसमें एज Yes, अ होल ma'am. है. ओवरलैप नहीं हो रहा है. ओवरलैप नहीं हो रहा है. तो ये चीज समझ में आ गई सबको? Yes. वेरी गुड. Yes, ma'am. Now I'm discussing the next radius. Next radius को कहते हैं वैन डर वाल्स रेडियस. मैम इसमें दो अलग एटम्स नहीं आ सकते? बेटा ये मेटल का स्ट्रक्चर होगा किसी भी, तो उसमें एक ही एटम होगा ना. मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मेजरमेंट है. अच्छा. कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी बिटवीन टू सेम एटम्स of the element, या कैन बी बिटवीन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट. बट किसी भी एक मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उसी मेटल के एटम्स होंगे. यस मैम. अगर मैंने कॉपर मेटल लिया है तो उसमें सारे कॉपर के ही एटम होंगे, है ना? यस मैम. समझ गया. मैम दो अलग अलग एटम का मेटालिक रेडियस निकालना होगा तो आएगा ही नहीं ना. निकालना होगा तो कैसे होगा? ऐसा मटेरियल ही नहीं है. आप कोई भी मेटल लोगे तो उसके स्ट्रक्चर में उसी के एटम्स होंगे.
और तुमको निकालना ही क्यों है दो अलग अलग एटम का, ये मुझे बताओ। कोई भी मेटल का ब्लॉक लोगे, आयन का मैंने ब्लॉक लिया, आयन का मेन लिया, तो इट इज मेड अप ऑफ आयन एटम्स ओनली ना। ऐसे नहीं कि आयन के बाजू में एल्यूमिनियम भी उसके स्ट्रक्चर में होता है, नहीं होता। कहाँ से लाएंगे? एल्यूमिनियम का रॉड है आपके पास तो सारे एल्यूमिनियम के एटम्स ही होंगे, उसमें बीच में सोडियम नहीं आता। कहाँ से लाओगे? तो ये हो गई आपकी मेटालिक या क्रिस्टल रेडियस। Now see the third radius. This is called as van der Waals radius. So see now why I need van der Waals radius, because there are some atoms in the periodic table जो कोवालेंट या मेटालिक दोनों बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से एटम्स है मुझे बताओ? Inert. इनर्ट गैस। Yes. तो मुझे बता, इनर्ट गैस का क्या मैं कोवालेंट रेडियस मेजर कर सकती हूँ? No, ma'am. नहीं. Okay. Can I measure the metallic radius for inert gas? No, ma'am. No, ma'am. तो फिर inert gas के लिए this will be the one that I will be using. Van der Waals is a name of a scientist who Yes, discovered very weak attractive forces which are holding the atoms or molecules together. तो अभी मैं पहले आपको वैन डर वाल्स रेडियस क्या है वो समझाती हूँ। ये इनर्ट गैस के लिए आप यूज कर सकते हो, बट किसी भी दूसरे एलिमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि कंपल्शन है। तो मेटल मेटालिक के लिए मैंने यूज किया, बट मेटल का मैं कोवालेंट भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। वैसे ही वैन डर वाल में क्लोरीन के लिए भी फाइंड आउट कर सकती हूँ और अर्गन के लिए भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। बट क्लोरीन के लिए मुझे कोवालेंट रेडियस है, ऑप्शन है, बट अर्गन के लिए मुझे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फॉर अर्गन आई हैव टू गो ओनली फॉर वैन डर वाल्स, बट क्लोरीन आई कैन गो Yes, ma'am. फॉर कोवालेंट आल्सो, आई कैन गो फॉर वैन डर वाल आल्सो। इज द डिफरेंस। तो अभी देखो व्हाट इज अ वैन डर वाल्स रेडियस। ये जो वैन डर वाल्स रेडियस है ना, इसका डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है, मैं पहले लिखती हूँ बाद में आपको समझाती हूँ। So it is defined as half of the distance between the nuclei of two non-bonded neighboring atoms. Of two adjacent molecules in solid state.
चलिए मैं डायग्राम ड्रॉ करके इसका मतलब आपको समझाती हूँ। So two molecules I am drawing first. तो ये जो भी, अगर मुझे क्लोरीन गैस की वैन डर वाल्स रेडियस मेजर करनी है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे क्लोरीन गैस को पहले लिक्विफाई करना पड़ेगा और फिर क्लोरीन गैस को मुझे सॉलिडिफाई करना पड़ेगा। इसको क्लोरीन के लिए ही अंडरस्टैंड करें। So this is my chlorine gas molecule in a solid state. One molecule of chlorine. और जिससे मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है कि अगर ये दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करेंगे तो ये इसकी कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ हो गई और इसका जो हाफ डिस्टेंस है ये इसकी कोवैलेंट रेडियस हो गई। ऑल दिस इज ऑलरेडी टॉट यू। सो दिस इज योर क्लोरीन गैस, वन मॉलिक्यूल in solid state. Okay, this is your chlorine gas, one molecule in solid state. अभी मुझे वैन डर वाल के लिए क्या चाहिए? मुझे और एक मॉलिक्यूल चाहिए, इसका जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है वो भी चाहिए। तो दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा, बट हाँ क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं कुछ तो वीक इंटरैक्शन फोर्स होगा और ये वीक इंटरैक्शन फोर्स को ही कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। So now let us understand what is van der Waals radius. Van der Waals radius किसको कहते हैं? It is the distance between two non-bonded atoms. मतलब ये एटम और ये एटम जिनके बीच में बॉन्ड नहीं है, between the nuclei of two non-bonded neighboring atoms of two adjacent molecules in solid state. तो ये सेकेंड पेयर क्या है? ये जो डिस्टेंस होगा ये बॉन्ड लेंथ होगी और इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा ये डिस्टेंस ये हो जाएगी मेरी वैन डर वाल्स रेडियस। तो वैन डर वाल्स का डेफिनेशन फिर से देखो, इट इज हाफ द डिस्टेंस between the two nuclei of two non-bonded neighboring atoms of two adjacent molecules in solid state. Is it clear to you? मैम एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? हाँ बेटा, हाँ मैम ये ठीक क्लोरीन मॉलिक्यूल है सॉलिड स्टेट में, ये दूसरा मॉलिक्यूल है क्लोरीन का ही सॉलिड स्टेट में। ये एटम और ये एटम दो अलग मॉलिक्यूल के एटम्स है। हाँ मैम दो अलग मॉलिक्यूल के एटम में कोई बॉन्डिंग नहीं होता। नहीं मैम नहीं होता। नहीं होता। वैन डर वाल रेडियस नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में ही मेजर होती है। अच्छा, यस मैम। तो जो बॉन्डेड है, कोवैलेंट बॉन्डेड है, उसका हाफ इज कोवैलेंट रेडियस, ऑलरेडी टॉट टू यू। यस मैम। तो जो दो अलग मॉलिक्यूल्स है उनके अलग एटम जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है उनका जो बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ डिस्टेंस इज योर वैन डर वाल्स रेडियस। तो फिर इससे किसका रेडियस पता चलेगा? क्या मतलब ये वैन डर वाल्स रेडियस किसका रेडियस है? उन दोनों के बीच का जो ये क्लोरीन का वैन डर वाल्स रेडियस है। दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैन डर वाल्स रेडियस। अच्छा, So looking at this you understand obviously ये क्लोरीन के कोवैलेंट रेडियस से तो बड़ा ही है, होने ही वाला है। यस मैम। आया ना? यस मैम।
But this is how chlorines van der Waals radius is defined, which is obviously much bigger than chlorine's covalent radius. Is everybody understanding the point? Yes, ma'am. मैम बोलो. मैम लेकिन ऐसा नेसेसरी थोड़ी है कि मतलब दोनों अलग क्लोरीन मॉलिक्यूल्स मतलब फिक्स डिस्टेंस पे होंगे ताकि एक ही वैल्यू हाँ. है वैन डर वाल्स का। हाँ मैम, हाँ, हाँ फिक्स मैम, डिस्टेंस वही पे बोल मैं रहा हूँ. बताती हूँ ना आपको. कोई भी आपके गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं, कोई भी आपका कंपाउंड जो भी गैसियस स्टेट में होता है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है. हाँ जैसे ही आप लिक्विड स्टेट में लेके आओगे, दे विल कम क्लोज. हाँ हाँ मैम, Yes, इंटर ma'am. न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होते जाएगा, और जैसे ही वो सॉलिड स्टेट में आएगा, द मिनट इट कम्स इन सॉलिड स्टेट, बहुत द ज्यादा होता है डिस्टेंस विल बी क्लोज। और कम हो जाएगा. Yes, ma'am. यस सॉलिड मैम, का अपना शेप होता है, सॉलिड का अपना स्ट्रक्चर होता है, और इसके लिए सॉलिड स्टेट में दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो प्रैक्टिकली सेम होता है. I cannot say this in gaseous state, I cannot say this in liquid state. But if they are in solid state, yes, this distance will be practically same. हम और ये दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को मतलब कॉन्जिक्यूटिव होना है कि नहीं हुआ तो भी चलेगा? Consecutive का क्या मतलब है? मतलब एक के बाद जो एक रहेंगे कि मतलब कोई भी दो बेटा ऐसे- सॉलिड स्टेट में नेबरिंग रहेंगे, अभी ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेंगे या 3D में रहेंगे, कैसे भी रहेंगे ना. एक मॉलिक्यूल के बाजू में सॉलिड स्टेट में दूसरा उसके अराउंड मॉलिक्यूल नहीं आएगा क्या? आएगा। तो बस वही कर रहे हैं. कंसेक्यूटिव कुछ है ही नहीं इसमें. एक के अराउंड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है एक्चुअली सॉलिड स्टेट में, बट सब ड्रॉ करूंगी तो पागल हो जाओगे. तो हाँ उसमें से मामा। दो ड्रॉ किए हैं. देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स अराउंड दीज टू मॉलिक्यूल्स. सो जस्ट टेक टू मॉलिक्यूल्स, और वो दो मॉलिक्यूल के दो एटम जो बॉन्डेड नहीं है, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करो और उसका हाफ करो. ये है आपकी वैन डर वाल्स रेडियस. अभी क्लोरीन के लिए ऑब्वियसली व्हाई आई विल मेजर दिस रेडियस, बिकॉज आई नो कि इससे जो आंसर आ रहा है वो एक्चुअल रेडियस से बहुत ज्यादा आ रहा है. हाँ या ना? तो क्लोरीन के लिए मैं कौन सी रेडियस प्रीफर करूंगी मेजर करना? कोवैलेंट, which Covalent will be radius. which is more close to the real radius का आंसर कोवेलेंट। है ना. रियल Yes. हाँ क्लोरीन मैम, का कोवैलेंट। जो भी साइज है वो मुझे सच में समझना है. तो मैं कौन सी रेडियस क्लोरीन के लिए मेजर करूंगी? वैन डर वाल करूंगी कि कोवैलेंट करूंगी? Covalent radius. कोवैलेंट करूंगी. बट अगर मैंने वैन डर वाल मेजर की तो क्या होता है ये मैं समझा रही हूँ. यू गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. So you have to understand that chlorine's van der Waals radius is much bigger than its covalent radius. अभी इनर्ट गैसेस के लिए मेरे पास चॉइस नहीं है, उनकी मैं कोवालेंट रेडियस मेजर कर ही नहीं सकती. और इसके लिए इनर्ट गैसेस की कौन सी रेडियस मेजर होती है? वैन डर वाल्स रेडियस ही Waals मेजर होती है. As there is no choice for inert gases. Is this Yes, clear ma'am. to you? Yes, ma'am. तो ये ड्रॉ करो. मैं कुछ डेटा दे रही हूँ डिस्टेंस का, क्लोरीन की वैन डर वाल्स रेडियस दे रही हूँ. तो वैन डर वाल रेडियस किस पे डिपेंड करेगा? आपके सॉलिड स्टेट में कितना क्लोजली मॉलिक्यूल पैक है. अगर पैकिंग कॉम्पैक्ट है तो वैन डर वाल की रेडियस कम आएगी. पैकिंग लूज है तो वैन डर वाल की रेडियस ज्यादा आएगी. Yes, ma'am. मैम इनर्ट गैस का वैन डर वाल रेडियस फाइंड करने के लिए उसको सॉलिड स्टेट में लाना पड़ेगा ना? उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सॉलिड स्टेट में लाना पड़ेगा ना? Absolutely, it is defined in solid state only. तो उसको लिक्विफाई करके सॉलिडिफाई करके ही मेजरमेंट होता है, गैसियस स्टेट में नहीं.
तो अगर ये डिस्टेंस हम क्लोरीन के लिए सॉलिड स्टेट में मेजर करते हैं तो ये आता है 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो क्लोरीन का वैन डर वाल्स रेडियस होता है 1.8 एंगस्ट्रॉम। और मैंने ऑलरेडी आपको कोवैलेंट रेडियस दे दी है, तो आप देखो कितना फर्क हो जाता है कोवैलेंट रेडियस में और वैन डर वाल्स रेडियस में। So we definitely understand van der Waals radius of an element is always larger than its covalent radius. यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। तो इतना कॉपी करो, देन आई एम शोइंग यू सम मोर कंपैरिजन और पढ़ेंगे। done. तो अभी 3 रेडियस अगर मुझे कंपेयर करके लिखना है तो व्हाट विल बी द लार्जेस्ट रेडियस? टेल मी। वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स सबसे लार्जेस्ट होगा, उसके बाद वैन डर वाल्स, मेटलिक रेडियस, मेटालिक, और उसके बाद में सबसे छोटा होगा कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट। So covalent radius is going to be smallest. Still bigger is metallic. And biggest is going to be van der Waals.
ये समझ में आया? यस मैम। ये ऐसे क्यों है? Why it is like this? क्योंकि इनके बॉन्डिंग में फर्क है। बॉन्डिंग का मतलब है there is some kind of force of attraction। तो कोवालेंट बॉन्ड में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवालेंट फोर्स होता है, मेटालिक बॉन्ड में वो होता है, और वैंडरवाल में हम उसको वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन कहते हैं। तो वैंडरवाल की रेडियस सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन है वो वीकेस्ट है, उसके बाद में मेटालिक फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन है, और उससे भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो कोवैलेंट फोर्स है। तो फोर्सेस को लिखना होगा, तो कोवैलेंट फोर्सेस विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट, and then will be metallic forces, and the van der Waals forces are weakest in the molecular forces. तो ये मैंने 3 रेडियस आपको समझा दिए। Now what next I am teaching you? I will teach you the variation of atomic radii. How does atomic radii vary in a period and in a group? So let us first discuss variation in a period. So what happens when we are moving from left to right in a period of normal elements? So as you move from left to right across the period, there is a regular decrease in atomic radius of normal elements. What is the reason? ऐसे क्यों होता है? What is the factor? The factor is Z effective. Effective nuclear charge जो हमने कैलकुलेट करके देख लिया है। तो आपका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z effective होता है। जितना Z इफेक्टिव ज्यादा है बढ़ते जाएगा उतनी आपकी एटॉमिक साइज कम होते जाएगी, और Z इफेक्टिव बढ़ते जाता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर अनडाउटेडली पूरा कैलकुलेट करके दिखाया है। तो ये आसानी से सबको समझ में आ रहा है कि why the atomic size is decreasing
as we move from left to right. Yes, ma'am. हाँ मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं, No, ma'am. राइट? तो जो लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स होंगे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बड़े होंगे, इसके लिए अल्कली मेटल्स आर बिगर इन साइज एंड एज वी गो ऑन द राइट साइज छोटे होते जाती है. नाउ अंडरस्टैंड, हैलोजन तक वो छोटे होते जाती है, बट आप किसी भी बुक में इनर्ट गैस की साइज देखोगे तो वो हैलोजन से बहुत बड़ी होती है. से फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की एटॉमिक साइज 0.72 है, बट फ्लोरीन के बाजू में जो नियॉन है वो 1.6 है. तो ये ट्रेंड लेफ्ट टू राइट का हैलोजन तक सही जाता है, और इनर्ट गैस की साइज बड़ी है हैलोजन से. व्हाई इट इज लाइक दिस? जेड इफेक्टिव तो बढ़ता ही है, फिर साइज क्यों बढ़ रही है? का रीजन ये है कि आपका इनर्ट गैस जो होता है उसकी आप वैन डर वाल रेडियस की रिपोर्ट कर पाओगे, और हैलोजन की आप कोवैलेंट रेडियस रिपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी वैन डर वाल रेडियस हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी कोवैलेंट रेडियस से. इज दैट क्लियर? यस मैम. मैम लेकिन एल्कली मेटल का रेडियस उससे कम होगा ना, इनर्ट गैसेस से? अल्कली मेटल का रेडियस उससे कम होगा ना. तो दैट ऑल डिपेंड्स बेटा कि किन दो मेटल्स को तुम कंपेयर कर रहे हो. अच्छा मैम, नियॉन और सोडियम को लिया तो? नियॉन और सोडियम को लिया तो सोडियम छोटा है नियॉन से. हाँ ओके मैम. नियॉन बेटा अंडरस्टैंड करो ना, वैन डर वाल में वो दो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में डिस्टेंस इनर्ट गैस में बहुत ज्यादा होता है. यस मैम. यस मैम. इनर्ट गैस में कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है. यस मैम. इनर्ट गैस की वैन डर वाल रेडियस बहुत ही ज्यादा हो जाती है. यस मैम, समझ गया. इसका मतलब ये नहीं कि जेड इफेक्टिव कम है और इसके लिए रेडियस ज्यादा है. हाँ मैम. हाँ क्यों ऐसा है? क्योंकि वो वैन डर वाल रेडियस है. ये पॉइंट समझो. हाँ मैम, समझ गया. Yes, ma'am. So I'm writing this note here. तो यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I discussed variation in a group.
अभी इन अ ग्रुप क्या होता है? द एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप increases as the atomic number increases. Yeah, as you go down in a group, atomic radius go on increasing for normal elements. ऐसा क्यों होता है? Because as you go down in the group, for every element, extra shell आ जाता है एनर्जी का, और ये जो एक्स्ट्रा शेल है वो न्यूक्लियर चार्ज को ओवर पावर कर जाता है, और क्योंकि एक्स्ट्रा शेल आ गया, स्क्रीनिंग बढ़ गया, आपकी एटॉमिक रेडियस किसी भी फैमिली में एज यू गो डाउन योर एटॉमिक रेडियस विल गो ऑन इंक्रीजिंग. आपने भी स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए क्या बोलेगा बोलिए ना. मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए ये बोली कि जैसे शेल बढ़ते जाएगा तुम्हारा, तो उससे स्क्रीनिंग बढ़ते जाएगा, और स्क्रीनिंग जितना ज्यादा उतनी साइज ज्यादा. More is the screening, more will be the atomic size, atomic radii. अब स्क्रीनिंग इफेक्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए. ऐसा किसने बोला बेटा? पूरा स्क्रीनिंग सिखाया, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग कैलकुलेट हो सकता है, बट साइज के लिए तो लास्ट पे ही करना है. हाँ. साइज के लिए तो मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन ही समझना है ना कहाँ पे है. हाँ. तो फर्स्ट शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो स्क्रीनिंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस मैम, बढ़ेगा. बढ़ेगा बढ़ेगा. और स्क्रीनिंग बढ़ गया तो तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, हाँ. और फिर एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगी. हाँ मैम समझा. तो यहाँ पे इन अ पीरियड दिया था, तो इन अ पीरियड का अगर मुझे एग्जांपल लिखना है तो तुम्हारा लिथियम विल बी लार्जर, देन विल बी बेरिलियम, देन विल बी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. एंड इन द ग्रुप मुझे एग्जांपल लेना है तो इट विल बी दिस वे. Right? Is this point clear to you? यस मैम. Okay. तो अभी ये जो मैंने डिस्कशन किया in a period and in a group, have you noticed I'm writing this everywhere? यस मैम. I've defined you what are normal elements. नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? आपके एच ब्लॉक के और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं, यस मैम. एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस. तो ये ट्रेंड उनके लिए है. इसका मतलब जैसे ही मैं किसी और टाइप के एलिमेंट्स की बात करूंगी, देयर इज समथिंग डिफरेंट गोइंग टू हैपन. सो आई विल डिस्कस विद यू द ट्रेंड फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द ट्रेंड्स फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. So we are specifically discussing the trend in atomic size for transition elements.
अभी देखो मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ले लूंगी और आपको साइज में वेरिएशन एक्सप्लेन करूंगी. So everybody knows what is first transition series. It starts with scandium 21 and it goes up to zinc 30. So expected क्या है? What is expected? We expect कि scandium से लेके जब भी हम zinc तक चले जाएंगे तो atomic size decrease होनी चाहिए. As this is moving from left to right, anyone has any doubt in this? बोलो. नो मैम, नो मैम. है ना. अभी देखो क्या होता है. I will show you graphically this. एक ग्राफ देख लेते हैं. तो इस ग्राफ में यहाँ पे मैं x एक्सिस पे z एटॉमिक नंबर प्लॉट कर रही हूँ और y एक्सिस पे से आई एम प्लॉटिंग एटॉमिक साइज या आप एटॉमिक रेडियस कह सकते हो. So what I am plotting on y-axis is atomic radius and on x-axis is atomic number. And I am showing you what happens to size. See carefully. Scandium से जैसे हम चलते हैं ना, the size decreases till chromium, and then the size is almost constant, and then it will increase. This kind of a variation we get in first transition series. So there is scandium here, there is chromium here, और chromium से copper तक तो जो भी 5-6 एलिमेंट्स है उनकी साइज ऑलमोस्ट सेम रह जाती है और कॉपर से जिंक में साइज थोड़ी बढ़ जाती है. सो इफ यू सी स्कैंडियम एंड जिंक, अगर मैंने स्कैंडियम और जिंक को कंपेयर किया, so what is the end result? Is my atomic size decreasing? Yes, but can I call this decrease as gradual decrease? This is not gradual decrease. Every next element is not smaller than the previous one. जैसे नॉर्मल एलिमेंट में होता है, ये ग्रेजुअल डिक्रीज है. अगर इसका ग्राफ में प्लॉट करूंगी ना तो हेलो मैम. 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 मैम.
Can you see me beta? Some issue with the net? देख पा रहे हो? I'm blurry है हाँ थोड़ा. मैम थोड़ा ब्लर है पर बस. आ जाएगा बेटा 2 मिनट. तो I was discussing first transition series, right? तो first transition series में trend देखा आपने क्या होता है? हाँ मैम. हाँ एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना. हाँ मैं कर रही हूँ बेटा. एटॉमिक साइज तेरे को क्या दिख रहा है? डिक्रीज होता है, फिर स्टेडी रहता है और फिर इंक्रीज होता है. यस मैम. एग्जैक्टली ऐसे क्यों होता है? आई विल डिस्कस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अभी तेरे को क्या समझना है कि नॉर्मल एलिमेंट में ग्रेजुअल डिक्रीज है और ट्रांजिशन में ग्रेजुअल डिक्रीज नहीं है. ये फर्क है, इतना समझना है. तो वेरिएशन इज नॉट सेम as that of normal elements. Is that clear? Why this way? We will do the detailing when I will separately teach you more about transition elements in a topic called D block. But right now understand that there is a difference for normal and transition. So in a period we see this kind of a difference. अभी देखो in a group क्या होता है? तो in a group first transition से when I am going for second transition series. तो ये जो है ये first transition series का ग्राफ है. I am writing first TS. तो first transition series के साथ मैं अभी आपको second transition series कंपेयर करवा रही हूँ. तो second transition series इट्रियम से स्टार्ट होता है और वो कैडमियम में खत्म होता है. तो द ट्रेंड इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट इज हैपनिंग फॉर फर्स्ट. इट इज डिक्रीजिंग, देन कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजिंग. तो ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, दिस इज फॉर इट्रियम टू कैडमियम. So when I am going down in a family, what is happening is what I am discussing. I have already discussed what happens left to right in a period. So variation of atomic size for transition elements I am writing here. From left to right, atomic size decreases but not gradually. And I have explained you what this means. Now I am discussing in a group of transition elements. So what I have explained you till now. From first transition series to second transition series, atomic size increases आया ना. और ये इंक्रीज ही होना चाहिए ना, होना तो इंक्रीज ही चाहिए, बट यहाँ पे होता नहीं है ना. सी व्हाट हैपेंस टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. अभी मैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो ग्राफ है ना वो रेड पेन से दिखा रही हूँ और वो सेकेंड से ही पैरेलल है. ये रेड वाला ग्राफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है. So what is the whole meaning of this? Your second transition series and third transition series is having a very similar atomic size. Yeah, from second transition series to third transition series, there is no increase in atomic size. Atomic size is remaining constant. And this needs explanation, right? तो ध्यान दो ये कांस्टेंट क्यों रहता है. आई एम टेकिंग टू फैमिलीज हियर.
योर ग्रुप 3B और उसके बाजू में ग्रुप 4B। ग्रुप 3B में वी आर हैविंग स्कैंडियम, उसके नीचे वी आर हैविंग इट्रियम, उसके नीचे वी आर हैविंग लैंथेनम, and here will be titanium, and then will be zirconium, and then will be hafnium. So what I have discussed with you is कि titanium से zirconium बड़ा होता है. Zirconium atomic number 40. Zirconium 40 is bigger than titanium. But जो hafnium है, उसकी atomic size is coming almost the same as that of zirconium. Why so? See on the board, this side, concentrate. So I'm drawing zirconium for you. I'm drawing hafnium for you. So your zirconium 40, the electronic configuration, I will write with krypton, and it is 5s2 and then 4d2. zirconium के एटम में 1, 2, 3, 4 and 5 shells are there. This is your zirconium. Total number of shells are 5. Electronic configuration written on the board. अभी देखो what happens to hafnium. Hafnium का atomic number 72 है और hafnium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 6s2, 4f14 and 5d2. तो एटॉमिक साइज दोनों की सेम है. का मतलब ये है कि hafnium के तो शेल 6 है, तो hafnium की 6th शेल की पोजीशन और zirconium के 5th शेल की पोजीशन सेम है. शेल तो ज्यादा अनडाउटेडली है. hafnium has 6 shells and zirconium has 5 shells and they both are at same position. Is this clear to you? इसके न्यूक्लियस में 40 प्रोटॉन्स है, इसके न्यूक्लियस में 72 प्रोटॉन्स है. तो hafnium में शेल बढ़ता है बट साइज क्यों नहीं बढ़ती? What is the whole reason that shell is increasing but size is not increasing? Can you hear me, बेटा? मैम आवाज थोड़ा कम आ रहा है आपका. मैम आवाज नहीं आ रहा. क्लियरली नहीं मैम आ बहुत मैम। कम आ रही है. मैम आपकी अभी स्क्रीन आती है शायद ब्लैक हो आवाज? गई. अब आ रही है. आपकी स्क्रीन ब्लैक होगी. स्क्रीन ब्लैक हो गई मैम. हाँ मैं वही कुछ देख रही दिख नहीं रहा. आ गया. राइट. आ गया. और मैं हाँ मैम, हाँ मैं आ गया. आपने लास्ट सेंटेंस क्या बोला, फिर से बोल सकते हैं? हाँ मैं 2 एटम्स मैंने ड्रॉ किए, zirconium और hafnium, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है. तो दोनों की साइज सेम है का मतलब है zirconium के 5th शेल तक का डिस्टेंस और hafnium के 6th शेल तक का डिस्टेंस सेम है. यस मैम. Why so? All reason is due to this 4f14. ये जो 14 इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टी शेल में जाते हैं f ऑर्बिटल में, तो यू नो कि तुम्हारे f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे स्क्रीन पुअरली. स्क्रीनिंग इफेक्ट में मैंने समझाया ना कि f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पुअरली. तो zirconium में 14 इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल में है and this 4f electrons screens poorly. और इससे क्या होगा? That will increase the Z effective. उससे zirconium में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा. यस मैम. और जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया आपकी एटॉमिक साइज क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो zirconium की साइज एक्चुअली बढ़नी चाहिए बट वो बढ़ नहीं पाती क्योंकि f ऑर्बिटल का पुअर स्क्रीनिंग होता है जिससे इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच
this is what is the reason that in transition metals, as we are going down, the atomic size is not increasing. Second transition and third transition, atomic size is remaining constant. और ये जो इफेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको कहते हैं lanthanide contraction. So this is due to a phenomena called lanthanide contraction. Meaning of lanthanide contraction is poor screening of 4f electrons leads to increase in Z effective, and that will lead to decrease in atomic size. इसी को कहते हैं lanthanide contraction. तो देखो D block में या transition element में, can I say as I go down atomic size increases? We can't say that. तो सेकंड से We can't say. इसके लिए पहले Yes, ma'am. मैंने लिखवाया था इन ग्रुप, मैंने स्पेसिफिकली लिखवाया था फॉर अ नॉर्मल एलिमेंट. तो नॉर्मल एलिमेंट के लिए yes, as we go down atomic size will increase, but what will happen in transition? First to second it is increasing, but second to third it is not, क्योंकि यहाँ पे आपके lanthanides है. Cerium 58 to lutetium 71 is here. यहाँ पे नहीं है, तो zirconium की साइज अफेक्ट नहीं हो रही है. zirconium में आपका शेल बढ़ गया, साइज बढ़ गया, बट हाफनियम की अफेक्ट होती है क्योंकि हाफनियम में 14 इलेक्ट्रॉन F में चले जाते हैं. तो सारे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज अफेक्ट हो रही है. इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम. ओके, तो इनर ग्रुप क्या हो रहा है? देखो, इनर ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन टू सेकंड atomic size is increasing, but from second to third atomic size is remaining constant. Is that clear? यस मैम. अभी इसका एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है, वो भी समझा देती हूँ. दिस इज एक्सेप्ट ग्रुप 3 और ग्रुप 3b. मतलब इसमें स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम में, इसमें क्या होता है? स्कैंडियम से इट्रियम इज बिगर और इट्रियम से लैंथेनम इज बिगर, क्योंकि लैंथेनम में 4f14 नहीं आएगा. 4f14 इनके बाद के एलिमेंट्स के लिए आएगा. इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम. तो लैंथेनम 57 के कॉन्फ़िगरेशन में 4f14 नहीं है, और क्योंकि उसके कॉन्फ़िगरेशन में 4f14 नहीं है, it is not having lanthanide contraction, and as it is not having lanthanide contraction, its size will show normal periodic trend. जैसे शेल बढ़ेंगे साइज बढ़ेगा. यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है is due to lanthanide contraction. So you see lanthanide contraction only for post lanthanide elements. जो lanthanides के बाद में है उनके लिए आपको lanthanide contraction दिखेगा, सबके लिए नहीं. समझ में आ रहा है? यस मैम. मतलब पूरे लैंथेनाइड सीरीज. हाँ, तो इसके बाद में पूरा जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, सो एंटायर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो साइज है वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के जितनी ही हो पाती है. इज दैट क्लियर? यस मैम. Any doubt anyone has? तो कॉपी करो बेटा बोर्ड से जो भी लिखा है वो. तो we are severe in between atomic size. Atomic size मैंने स्टार्ट किया है, atomic रेडिया हम डिस्कस कर रहे हैं, बट कंप्लीट नहीं हुआ है. So atomic radius discussion to be continued है. अगले लेक्चर एटॉमिक रेडियस का डिस्कशन कंप्लीट होगा, नॉट नाउ. ओके मैम. टू बी कंटिन्यूड है. यस मैम. मैम आपने लैंथेनाइड के नीचे रेड में क्या लिखा है वो पूरा नहीं दिख रहा है. किधर बेटा? 3b के ग्रुप में लैंथेनाइड में आपने कुछ नीचे लिखा है रेड से. बेटा रेड से बस वो एलिमेंट्स लिखे, सीरियम 58 टू लुटेशियम 71. ओके.
जो तेरे पास पीरियोडिक टेबल में भी होंगे। ये फैमिली मैंने पीरियोडिक टेबल में दे दी है ना, अभी दिख रहा है बेटा? यस मैम। सब जस्ट रिटर्न दोज एलिमेंट्स देयर। तो आज मैं एटॉमिक साइज का असाइनमेंट दे नहीं पाऊंगी क्योंकि आज मेरा एटॉमिक साइज पढ़ा के नहीं हुआ है। ओके मैम। ओके, तो अगले लेक्चर 2 असाइनमेंट आ जाएंगी ये पढ़ा के होने के बाद, ठीक है? आप थोड़ा स्क्रीन राइट ले सकते हो? स्क्रीन में राइट ले लूं? हाँ हाँ मैम। और बोलो, तो एग्जाम कैसे गया परसों का? मोल कंसेप्ट कर पाए, पीरियोडिक कर पाए आप लोग? हाँ मैम। कोई इशू नहीं? नहीं मैम। ग्रेट देन, अभी एक्सपर्ट हो गया आप लोग मोल कंसेप्ट में, और 2-4 एग्जाम लेके एकदम परफेक्ट हो जाओगे। यस मैम। और बुकलेट खत्म करो अभी। इट्स अ हाई टाइम दैट एनीवन इज स्टिल नॉट फिनिश्ड विद द बुकलेट। अभी हाँ पीरियोडिक, मैम, मेरा हो गया मैम। हाँ सबका, मतलब जिसका नहीं हुआ मैं उससे बात कर रही हूँ। तो बुकलेट खत्म करो, हाई टाइम, असाइनमेंट खत्म करो, और मैं एक्स्ट्रा के असाइनमेंट दूंगी अभी डिफिकल्ट वाले मोल कंसेप्ट के। ओके मैम। पीरियोडिक के तो चलते ही रहेंगे। मैम अभी लेफ्ट से कट रहा है, आप थोड़ा सा कर सकते हैं? हाँ तो लेफ्ट से कट रहा था ना, क्या करूँ? किसी ने पूरा राइट करने को बोला तो भी लेफ्ट हाँ से कट हो गया। हो गया। हाँ ग्रेट। तो लिखे हो जाएगा तो मुझे बोलना, आई विल एंड द मीटिंग। मैम लिख लिया। मैम हो गया। चलो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय, टेक केयर।